السلام علیکم ناظرین شام 7 بجے تو قشر خبرنامہ ہیت بہ ساحل امین تہندس خدمتس مز حاضر تو خبرن ہند تفصیل زاننے برو اخ نظر چن خاص خبرن پہ۔ پاکستان لوگ بھارت ست امن یژھان پاکستانس مز عوامی حکومت بارسس ین پتہ رشتہ بہتر سپدنچ ومید ڈاکٹر فاروق عبداللہ۔ نفرت چہ سیاست نش ہمیشہ رودمت دور بے قصورن انصاف فراہم کرنس حوالہ روزو کام کران رویندر رینا۔ تو سکینہ یتو سون دمال ہانجی پورہ کولگامیک دورہ ہسپتال عمارت کورک افتتاح لوکن دتک مشکل دور کرنک یقین۔ ناظرین پیش خبرن ہند تفصیل۔ جموں کشمیر مز یت سڑک حادثن دوران انسانی زو ضائع سپدنک سلسلہ بدستور جاری تت کشتواڑس مز سڑک حادثہ پیش آمت یتھ دوران کیا مسافر زخمی سپد۔ ون آز دوپہر کشتواڑ کس شالمر علاقس مز اکس گاڑی حادثہ پیش آمت یتھ دوران الہ پلہ 22 مسافر زخمی سپد۔ یل زن یہ واقع پیش ین پتہ بچاؤ کاروی شروع کرنا آئی یتھ دوران تمام زخمی مسافر علاج معالجہ باپت ہسپتالس مز داخل کرنا آئے۔ سر یہ ایک ایکسیڈنٹ ہے جو مالی بٹ میں ہوا ہے کشتواڑ میں۔ اس میں جو ہے ابھی جو لسٹ ہے ہمارے پاس وہ 22 لوگ جو ہیں وہ انجرڈ ہوئے ہیں، ڈیتھ کوئی نہیں ہوئی ہے، اور 22 میں سے جو ہے ایک جو ہے وہ جو ہے اس کو جموں ریفر کر رہے ہیں ہم، کیونکہ اس کی جو ہے ملٹیپل ٹانگ میں جو ہے فریکچرس ہیں۔ تو کوئی سیریس یا کرٹیکل اس کنڈیشن میں؟ یہ تھوڑا سا ایک ہی ہے جو جس کو ہم بھیج رہے ہیں، باقی جو ہے سب نہ۔ نیشنل کانفرنس پارٹی صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ موجودہ صورت حالس حوالہ کت کران وونمت پاکستانس مز روزن ول لوک بھارت ست دوستانہ ماحول یژھان تو یم سات پاکستانس مز عوامی حکومت بارسس یہ تمہ سات سپدن دشوین ملکن ہند رشتہ مضبوط۔ آج ایک مشکل وقت سے گزر رہا آج کچھ پتہ نہیں کہ کل کیا ہوگا۔ دونوں ملک آج جنگ کے میدان کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ کوششیں دنیا میں ہو رہی ہیں کہ یہ نہ ہو اور کوئی راستہ نکالا جائے جس سے یہ جو ہوا ہے اس کو ان لوگوں کو پکڑا جائے جنہوں نے کیا ہے، اور جو ان کے چلانے والے ہیں ان کو بھی گرفت میں لیا جائے۔ اب کتنا وہ دنیا کامیاب ہوگی اس کو روکنے میں وہ اللہ جانتے ہیں، یہ میرے پاس نہیں ہے، یہ ٹوٹلی گورنمنٹ آف انڈیا کے پاس ہے۔ یہ سوال آپ کو ان سے کرنا چاہیے۔ جہاں تک میرا انسانیت کا سوال ہے، یہ ایسا کارروائی بہتر نہیں ہے، یہ انسانیت کے خلاف ہے۔ وہ یہاں 70 سال سے رہ رہے تھے یا 25 سال سے رہ رہے تھے یا 5 سال سے رہ رہے تھے، وہ یہاں تھے، اس کے بچے یہاں تھے، پڑھتے تھے، انہیں ہندوستان کو کوئی زخم نہیں دیا بلکہ ہندوستان کو قبول کیا۔ تو اس سے کوئی نتیجہ اچھے نہیں ہوتے۔ پاکستان فیلڈ اسٹیٹ ہے، اور اس فیلڈ اسٹیٹ کو اس کے بجائے کہ وہ اپنے ملک کو بہتر کرے، وہاں کی حالات اچھے کرے، میرے خیال سے ان حالات سے ان کو نکالنے کے لیے کہ اس کی طرف نہ سوچیں، انہوں نے یہ رخ لیا ہے، اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ بھیانک ہوگا، بہت بھیانک ہوگا اگر لڑائی ہو۔ کیونکہ دونوں اٹامک پاور رکھتے ہیں، اور اگر اس کا استعمال ہوا تو پھر تو اللہ ہی جانے کہ کیا ہو۔ وہ تو پہلے سے لوگ مانگ رہے تھے، کوئی نئی چیز نہیں، یہ تو پہلے سے ہی لوگوں کی ضرورت تھی، وہ چاہتے تھے کہ کاسٹ سینسس ہو، اور اچھا ہے۔ آپ کہتے ہیں مسلمان ہے، کوئی کہتا ہے 11 کروڑ ہے، کوئی کہتا ہے 12 کروڑ ہے، 14 کروڑ ہے، 22 کروڑ ہے۔ بھائی پہلی دفعہ پتہ تو لگے کون کتنے برہمن ہیں، کتنے
लोअर कास्ट हैं, कितने मुसलमान हैं, कितने सिख हैं, कितने ईसाई हैं, कितने दूसरे हैं, पता तो लगे। तो इसमें कोई बुराई थोड़ी है। सिर्फ यहाँ की हुकूमत, बल्कि बाकी हुकूमतें भी इसकी तरफ देख रही हैं कि ऐसा ना हो। मगर ऐसे लोग हैं हमारे देश में जो ऐसी बातें करते हैं, जो ऐसी चीजें करते हैं। उनको इससे गर्व नहीं है कि मुल्क में क्या होगा, उनको सिर्फ तंग करने की आदत है। क्या गॉडसे यहाँ का नहीं था जिसने महात्मा गांधी को मारा? नहीं था। तो फिर ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग रहेंगे। है आखिरी ऑप्शन है या नहीं, मैं नहीं कह सकता। ये तो दो मुल्कों के सरबराहों को फैसला करना। I don't think between India and Pakistan relations will ever improve unless the army goes. People of Pakistan want friendship with India. People, but not the hierarchy there. When the people's government will... भारतीय जनता पार्टी सीनियर लीडर तो सबक सदर रविंदर रैना ये खत्े पीर 45 किस 3 दोहन हंदिस दौरस पे तज आज राजौरी मज पार्टी तरफ प्रोग्राम सांस कर आमुत यथ मज लीडरों तो वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे मौजूद सूरत हाल तो पार्टी मामलन हवाले कथन दल दिन आव तज रविंदर रैनान वोनमुत पहलगाम वाक़ ये सठे अफसोसनाक तज जरूरी प्रेत अकिस गि इंसाफ फराहम कर युत जन लूक जहनी कोफ्त शिकार सपदन ये जन तिमन गरन हूं दौर कोर यमन गरन हंद क्या फर्द इंतजामिया तरफ पाकिस्तान वापस सोजन आमद। हमेशा कोशिश रही है, आप सब जानते हैं कि मैं हमेशा कोशिश करता हूं अमन, शांति, खुशहाली, भाईचारा, प्यार, सब लोगों की तकलीफें दूर हों। मेरी हमेशा कोशिश रहती है और मैं कोशिश करता हूं कि सबके साथ इंसाफ हो। अभी रजौरी पुंछ के दौरे पर हूं और मैं अभी वादी कश्मीर से होकर यहां सीधा रजौरी पुंछ पहुंचा हूं। रजौरी पुंछ में अमन, शांति, खुशहाली, भाईचारा ये कायम रहे। रजौरी पुंछ के लोगों के दिलों में हमेशा अमन, शांति और खुशहाली, भाईचारा रहा है। अमन का, प्यार का, मोहब्बत का और भाईचारे का एक पैगाम लेकर मैं यहाँ आया हूँ। सिविल सोसाइटी की मीटिंग्स, अलग अलग सियासी जमातों के और सिविल सोसाइटी के लोग यहाँ मेरी इस मीटिंग में आए। मैंने सबसे गुजारिश की कि इस मुश्किल वक्त, चूँकि थोड़ी बॉर्डर के ऊपर कशीदगी नज़र आती है पहलगाम के पाकिस्तानी दहशतगर्दाना हमले के बाद, गम व गुस्से का इजहार पूरे हिंदुस्तान में है, पूरे जम्मू कश्मीर में है। और मैं वादी कश्मीर का दौरा पूरा करने के बाद 3 दिन के दौरे पर रजौरी पुंछ पहुंचा हूं। अमन, शांति और खुशहाली, प्यार और भाईचारे के पैगाम को लेकर मैं रजौरी पुंछ पहुंचा हूं और मेरी कोशिश है कि ये भाईचारा, ये प्यार, मोहब्बत बना रहना चाहिए। मैंने हमेशा कोशिश की है कि सबके साथ इंसाफ हो और जस्टिस हो। और मेरी ज़िंदगी गरीबों, मजलूमों, मस्कीनों, ज़ईफ़ों के लिए है और मैं हमेशा बिना मज़हब, मिल्लत, बिना जात बरादरी और बिना सियासी चश्मे के मैं सबके लिए काम करता हूँ, सबकी खिदमत करता हूँ, हक और इंसाफ की बात करता आया हूँ और आगे भी करता। वजीर सेहत तालीम सकीना यतून आज हल्के इंतखाब दमाल हाजीपुरा कुलगाम दौर कोर्मुत यथ दौरान तिमन हमरा इंतजामिया दोयम अफसर ते मौजूद दौरस दौरान ये तिमो सब डिस्ट्रिक्ट हस्पताल मज तमीर सपजम इमारत इफ्तिताह कोर तत तिमो वोनमुत ज महकमे सेहत तालीम हुंद बुनियादी ढांच मजबूत करने हवाले सरकार संजीद युत जन आम लूकन तो तालिब इल्मन राहत वात। फायदा है, पेशेंट केयर अच्छा हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि दमाल हाजीपुरा एक दूर दराज इलाका है। यहाँ मरहूम शहीद अली मोहम्मद इद्दू साहब ने हॉस्पिटल बनवाया था, उसके बाद फिर मैंने बनवाया और आज तक जब सरकार की तब के बाद कुछ नहीं हुआ, लेकिन कोशिश की ये कंप्लीट हो जाए ताकि लोग जो दूर दराज इलाकों से आते हैं, चाहे वो मंजगाम टंगमर, हालन, बंगवाड़ से आते, चाहे वो बरजालन, कुटामर, नागनाथ, सिमेर से या कुल अहमदाबाद से पेशेंट आते हैं, उनको यहाँ
बेहतर हेल्थ केयर जो है वो होना चाहिए, पेशेंट केयर जो है वो अच्छे से अच्छे। इन 6 महीनों में काफी कुछ किया है, लेकिन हेल्थ सेक्टर में बहुत काम करने की जरूरत है। इसी तरह एजुकेशन में भी बहुत काम करने की जरूरत है। सरकार कर रही है, काफी शुरुआत हुई है इंशाल्लाह, लेकिन आगे भी काफी कुछ करना है, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। जम्मू कश्मीर मज ये पत्मो कैचो दो पे मौसम खुशक रोजन सत दर्जा हरारत मज इजाफ वुचन तब महकमे मौसमियात को जिम्मेदारों तरफ वन आमुत यदवे अजक पे जम शोबस मज कैंचन दोहन ताम रुदलव पेनुक इम्कान तब वादी हंदिस मौसमस मज पगही पे तब्दीली यिनच वमेद या दौरान रूद पेनुक इम्कान दिनों में इस तरह का जो तापमान हम देख रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखो वेदर अभी मुसलसल ड्राई चल रहा है और इस बीच कुछ एक स्टेशंस के अंदर पिछले कई सालों का या डिकेड्स का जो रिकॉर्ड टूटा है, खासकर यहाँ श्रीनगर के अंदर और इसी तरह कुकरनाग, पहलगाम, और आज भी जो है कुछ एक जगहों पे जो है हीट वेव लाइक कंडीशंस जो है रह सकते हैं, क्योंकि दर्जा हरारत जो है 30 डिग्री एंड अबव रह रहा है और उसके बगैर जो डिपार्चर है एक्चुअल टेम्परेचर का और नॉर्मल टेम्परेचर का वो लगभग 4.5 डिग्री से ऊपर चल रहा है। तो आज भी कुछ एक जगहों के अंदर हीट वेव के चांसेस हैं, खासकर यहाँ वैली के अंदर। जम्मू डिवीज़न के अंदर थोड़ी सी बारिशों के चांसेस हैं। जम्मू और एडजॉइनिंग जो पहाड़ी इलाके हैं, और इसी तरह ये एक्टिविटी जो है खासकर नेक्स्ट 3-4 दिन तक इंटरमिटेंटली बारिशें रह सकती हैं जम्मू डिवीज़न के अंदर ब्रीफ पीरियड के लिए, और थंडर एक्टिविटी साथ साथ में गस्टी विंड्स और हीट वेव जैसे ऑलरेडी जम्मू डिवीज़न के लिए 30 तक हमने ऑलरेडी इशू किया था। तो गर्मियाँ जो है कम होना शुरू होंगी खासकर जम्मू डिवीज़न के अंदर आज से, और कल से जो है यहाँ वैली के अंदर भी जो है दर्जा थोड़ा सा 30 डिग्री से नीचे चलने के चांसेस हैं। तो ओवरऑल जो है 5-6 मई तक जो है हल्की बूंदाबांदी, कुछ एक जगहों पे थोड़ा सा मॉडरेट रेन के भी चांसेस हैं, खासकर जम्मू डिवीज़न के अंदर थंडरस्टॉर्म, गस्टी विंड्स के भी चांसेस हैं, और इसी तरह फिर 6th ऑनवर्ड्स जो है थोड़ा सा मौसम और खुल सकता है, बेहतर होने के चांसेस हैं। तो आइसोलेटेड हीट वेव एक बार फिर देखने को मिल सकता है जम्मू डिवीज़न के अंदर भी और यहाँ वैली के अंदर भी। CPIM लीडर तो मेंबर असम्बली कुलगाम मोहम्मद यूसुफ तहरगम मजूरन हंदिस आलमी दोहस हवाले कत करान वोनमुत यस आवाज़ कया वरी ब्रो शिकागोस मज मजूरों तरफ तुलना आय स आवाज़ अजक दह पूरे दुनिया मज दोहराने यवान। जहाँ तक आज के दिन का ताल्लुक है, हमारी नज़र में ये सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल दिन है, ख़ास तौर पर वर्किंग क्लास के लिए, मेहनत के शवाब के लिए। मेरे ख्याल में यही एक दिन है जो मनाया जा रहा है एक इयादे के तौर पर, रिजालों के तौर पर, मेहनत के शवाम की तरफ से रंग व नस्ल की तमीज़ किए बिना जोग्राफिकल हदूद को नज़रअंदाज करके मशरिक, मगरिब, जनूब, शुमाल, अरब, अजम, यूरोप, जहाँ भी मज़दूर काम करने वाले हैं, फैक्ट्रियों में काम करने वाले हैं, मुख्तलिफ एस्टेब्लिशमेंट्स में काम करने वाले हैं, मीडिया हाउसेस में काम करने वाले हैं, खेतों में काम करने वाले हैं, आज का दिन उनके लिए काफ़ी अहमियत का दिन है। और मैं सिर्फ याद दिलाऊंगा 1886 में, उससे पहले अमेरिका में फैक्ट्रियों में काम करने वाले, उनका कोई दिन मुकर्रर, काम का टाइम मुकर्रर नहीं था। सूरज तुलू होने से गुरूब होने तक, बल्कि उसके बाद भी मिडनाइट्स तक उनसे काम लिया जाता था, हद मुकर्रर नहीं थी। और इसी वजह से मजदूर तबका तंग आकर उन्होंने अलग अलग एहतजाज किए, बात सुनी नहीं गई। फिर शिकागो में, अमेरिका के एक बड़े शहर में मजदूर जमा हो गए और उन्होंने वहां एहतजाज किया। एहतजाज करने वालों पर गोलियां चली, काफी लोग मारे गए, और जो बचे उन्होंने अपने कपड़े निकाल कर उस खून से उनको रंगा और हलफ उठाया कि आपकी कुर्बानी जाया नहीं होगी।
ये आपका रंग इस परचम की शक्ल इख्तियार कर लेगा पूरी दुनिया में और एहतजाज होता रहेगा। मजदूर को वेजेस चाहिए, उजरत चाहिए, इज्जत की जिंदगी चाहिए। नाजरीन खबरनामस में तुम दोबारा खैर मकदम तो पेश मजीद खबरन तफसील हंदवरिस में आज वर्ल्ड लेबर डे किस मौके पर तकरीब साज कर आमुत यथ मुख्तलिफ रजाकार तंजीमन हिंद जुम्मेदारों अलावा मुकामी लूको शिरकत कर अत मौके पर ये मजूरन हिंदन हकूकन तो दरपेश मुश्किलन हवाले कथन दल दिन आव तक वन आमुत मजूर तबकह प्रेत विज सरकार तरफ नजर अंदाज करने यम सह तबकह दो खुद दो पत गसान। आज इंटरनेशनल लेबर डे पूरे वर्ल्ड में मनाया जा रहा है और हमारे हिंदुस्तान में मनाया जा रहा है और आज इसी सिलसिले में नेशनल ह्यूमन राइट्स सोल्जर्स काउंसिल ऑफ इंडिया ग्लोबल नॉर्थ कश्मीर में आज लेबर डेज के मौके पर ये एक प्रोग्राम मुनाकिद कर रहा है ताकि हम तमाम ट्रेड यूनियन से जितने भी लोग आए हैं उनको अवेयरनेस दे देंगे और इंटरनेशनल लेबर डेज का क्या मकसद है कि इनके लेबरों की वजह से ही पूरी दुनिया बनी हुई है। पूरी यौम मजूर किस मौके पर पुंछस मज प्रोग्राम साज कर आमुत यथ मज लूकन हिंद बड़ी तादाद शिरकत कर अत मौके पर ये शिकागो कन शहीदन खराज पेश करना आव तक पहलगाम वाकह तह मजम्मत करना आमज इल जन अत मौके पर मजूरन दरपेश मुश्किलन हवाले कथन दल दिवान सरकारस मंग करना आई सरकार पज मजूरन हवाले संजीदा सपदुन। यौम मेल के शहीदों को खराज अकीदत पेश करके करूंगा कि हमारे मजदूरों की एक बहुत बड़ी इचकूट बडगमिस मज ये जमीन वसित इन सया मवेशी हलाक सपद तक मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मंग कर आमज मुतासर अयालस गस मदद कर युन युथ जन तिमन दो गुजार मुश्किल सपदे ये जन लूको तरफ वन आव कई फिर इंतजामिया अमे हवाले जान दिन आमज ये खतरा ताहम कह संजीद कदम तुलना आमुत यम किन आज यह हादसे पेश आव। बन कर गरीब लुकन पेश बिचारे कह कारोबार बगैर कम से कम गो 30-30 नुकसान बस वो सोन अर्ज गवर्नमेंटस कि अत दी तो परमिशन कस तुलन यह बना ना यह हादसे कि सारी स्कूल बच्चे तमाम जायन तम योत गिंदने खतर पत ओत शहजरस बेन इन बिचारन यह कुछ सात यह बनित यह हे अम पे यह हादसे बनित बाकी कह गर्ज इल्तिजा अमुक बस कर अर्ज यह बनतन अम खतर यह करतन सोतर कर थोड़ा पाई कहा। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सुबल बंडपुर में आज मनशियात हवाले प्रोग्राम साज कर आमुत यथ कॉलेज इंतजामिया तो तलब इलमो शिरकत कर अत मौके पर ये मनशियात कन मुजर असरातन हवाले कथन दल दिन आव तक वन आमुत मनशियात पे रोड लागने बापत जरूरी जानकारी प्रोग्राम ज्यादा खुद ज्यादा साज कर युथ जन नौजवान पुई अम नश दूर थवनस मज आसानी सपदे। Today's program in our college was scheduled by district administration, and apart from that in our college we have a Nasha Mukt Bharat Abhiyan committee wherein we do weekly or quarterly programs with the students in order to sensitize them and make them aware about the menace of drugs. We also move on with morning assemblies where we have just 5 minutes talk with the students where we make them aware about not only drugs but other things also like जम्मू कश्मीर में ये रात 12वीं जमात हूं रिजल्ट आउट सपुद तो कोरियो तरफ बेहतरीन कारकर्दगी मुजाहिर करना आव तक जनूबी हंदिस काठवाड़ बटनूर इलाक तोलुक थवन वाजन शबनम नौच ट्राइबल कोर बेहतरीन कारकर्दगी मुजाहिर कोरमुत ये जन वालदेन तरफ खुशी इंतजार करान वन आव तिमन रिजल्ट ब्रोह कुन इन पत सठई खुशी सपजमत। मेरा नाम शबनम सादिक है, मैंने GHSS त्राल से अपनी स्टडी की और कल जो रिज़ल्ट आया उसमें मुझे 92.6% है और मैं बहुत ही खुश हूँ। पहले प्राइमरी एजुकेशन मैंने काठवाड़ पन्ना से प्राइमरी स्कूल से की, उसके बाद यूपी यपर ये रात शाम पे 10वीं जमात सालाना इम्तहान हिंद नतीजन हूं ऐलान सपुद तक जिले शुपियन तोलुक थवन वाजन नाबीना कोर रिफत जान बेहतरीन कारकर्दगी मुजाहिर कोरमुत ये जन वस्तादों तो मुकामी लूको तरफ खुशी इंतजार करान वन आव रिफत जान गवर्नमेंट हाई स्कूल संधू सत इलाक नाव रोशन कोरमुत। हाई स्कूल संधू शर्माल
بہت ٹیچرن ہند واریاہ زیادہ شکر گزار مطلب یمو کور میانہ خاطر واریاہ زیادہ مطلب یم مے واریاہ زیادہ ٹائم دِوان مطلب بہت یمن ہند واریاہ زیادہ شکر گزار کہ یمو دیت میانہ خاطر یوتاہ زیادہ ٹائم کوٚر تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ چھس بہٕ واریاہ زیادٕ شُکر تٔمۍ کوٚر مےٚ واریاہ زیادٕ ہیلپ. تو ناظرین اتھ ووت خبرنامہ دیو اجازت خدایس حوالہ.